the guest lecture session by Lighting Dreams. At the onset, I request everyone to take care of technical mishaps by switching on and off the mic or video only when necessary. Lighting Dreams is an initiative by the students of NLUs to provide practice materials and guidance to those aspiring for CLAT and other law entrance exam free of cost. We organize GK discussion on daily basis and hold toppers talk every Sunday. We have our YouTube channel where current affairs and videos related to legal judgments are uploaded. We also have a blog channel where, on a daily basis, blogs related to current affairs and legal news are uploaded for the aspirants. It gives us immense that the team is currently mentoring more than 280 aspirants. Today, we have with us respected Sir Advocate Vedansh Anand, working in Delhi High Court and Supreme Court. Sir has appeared in landmark cases related to oxygen supply before Delhi High Court and Supreme Court. Sir is a famous RTI activist who has filled more than 350 RTI applications. He is a social activist and a human rights activist. Sir is also a former state convener of Think India Delhi. Sir is an expertise in criminal law and has received letter of appreciation from the former governor of Nagaland. The whole team of Lighting Dreams thanks Sir for bestowing us with his precious time to the law students and aspirants. Today, Sir will be expressing his views on life as a lawyer, prep to present. We hope all of us will get to experience something very informative. All participants are requested to put down their questions in the chat box. We will try to take them at last and kindly maintain the decorum of the session. Now, sir, the mic is yours. Hello everyone. It's been very pleasure moment for me to be here. I don't know whether I am clearly audible or not. Yes, sir, you are. Okay, thank you. Thank you, Kathy, for the wonderful introduction and all. I wish and congratulate the entire team of uh, your organization, and they are really doing very great. All the volunteers and youth volunteers. I'm looking at the in my organization in Think India when I was a volunteer. I was one of person like you who was working day and night to ensure that any of the programs, the conduct, the conduct and the management of everything, the program related to any event like law event, symposium and all, to be organized smoothly with the presence of the guest and all. We have to take care of everything like the food management, the guest management, the stage management, auditorium management, and all the stuff. So it was all the process, and after going all with the process of being a volunteer of any of the organization and in the field of litigation and try to establish yourself with all the hard work and the patience that you have. Uh, so it's all the process that I'm going to tell you about. How it start and from where and when to start the litigation. Uh, in my earlier days when I have prepared for the client, my father is also the public prosecutor, and he used to say me that Vedansh, it's not you that who is going to choose the profession; it's profession that choose you to be like that. So I will be bilingual because for expressing the emotions, English is not the suitable language for me. So I remembered my father quote always and very often that he said that Vedant's profession that was going to choose you. What matters in the profession is your patience, number one. Number two is your hard work. How hard that how much hard work that you are going to put in your assignment, in your research, in your drafting, in your briefing. It's always make and different. Even though you are not good, even though you are not smart, even though you are not cool, what matter is your hard work, your patience, your humbleness, and the contentness you have with your work and all. So in my college days, I have interned in many of the law chambers, in some of the very prestigious law chambers, also under the mentorship of many viewers.
Supreme Court senior advocates, uh, and some of the AGs and SGs office. So the overall exposure was good. To when I was interning in some of the chambers, initially I was completely blind there. I don't know anything. I don't know the basic stuffs of the litigation. I don't know even how to brief the counsel. If, when the counsel is senior advocate and he has expectation from you that if you don't have to waste his time because he is obviously taking 25,000 per hour as a conference as a call conference to his client. So I remembered one of my senior when I was interning in Jampura, Mr. Atul Jha, who was the senior standing counsel for the Chhattisgarh at that time. So he used to interact with me at his lunchtime very often. So he said, Vedansh, tell me what you have done today, what kind of research that you have prepared, and the briefing of any case that he has shared with me. So I once upon a time he asked me for the briefing of the case, and I was completed the brief in around 2 to 3.5 an hour. So when I was briefing, sir was patiently listening me, and after that he said, "Vedansh, you have wasted all my time, and also you have wasted the test of my lunch. So you have to compensate it." I was completely blank and say, so what happened? I have done all the effort that I expected to do. So sir was say that it is all that you have. It's not theoretical in litigation; it's practical. You have to apply your own mind. This is not the definition. This is not the definition of the Bare Act that you have to only put in the briefing. What your thoughts on the briefing is, what your perspective on the briefing is, how what the landmark cases is, what the key things behind the landmark cases that you are quoting in your brief. It's matters in the brief. Not only that you have prepared the brief of the matter by copying and paste of the list of the dates and synopsis of the petition. So then I came to realize that yes, the briefing, it's in litigation. Everything's matter. Even briefing is briefing. Being a briefing counsel of senior advocate, being the briefing counsel of standing counsel is actually matters because they don't have time to read the file. They don't have time to read the files of 1,000 pages, 2,000 pages. I have gone through the matter of Indian Oil, which was a repetition, I think 1999, and it's the matter of 1999, and the petition was in 4 volumes, and each volume consists of more than 1,000 pages. It's around 5,000 and more. What the entire petition was. So I have given the assignment to prepare the brief, to find out the landmark judgment, to interact with the department, to find out what they stand for, whether they have complied with the status of the High Court, whether they have complied with the order of the High Court, and all the adjudicatory authorities. Meanwhile, when they are coming to the High Court. So that was the assignment that I have taken from the CGSC Rajesh Bhugna when I was working again. Uh, so when I was interacting with the department was saying, "Sir, I don't know anything about this case because I just joined the department very recently, and I have to put my senior with you." So I said, "Okay, sir, no problem." I just interacted with the seniors of the department who are the concerned person and who have the who are very well versed with the fact and the circumstances of the Indian Oil case. After going through the department brief and all, I was put all the comments of the department in one page. After that, I have prepared one note of myself that what suggestion that I have to put. Then I came to know that there is a rejoinder filed by the petitioner in that case. So I just brief out the rejoinder of the particular note. But when I was going through the petition of more than 5,000 pages, I came to know that this the page of petition, 5,000 page of petition, everything matters. Even a single or comma, and everything matters in the brief. So when I briefing sir, I was very impressed because of my brief, and he says, Vedansh, I have reading this case from past few months because this is very landmark case for me and for the entire office.
And in my entire career of CGSC, in CGSC, Center Ground Shunting Council, this is very one of the very oldest case in the Delhi High Court of Indian Oil versus Union of India. So and he says that how you have prepared such brief and very short span of time. So I said, sir, I have tried all these smart tactics that I have supposed to use. I have gone through the department briefing. I have interacted with the department. I have I have a very good conversation with the senior officer of the department, who is the refinery CEO, one of the refinery Mathura refinery CEO. Some of the refineries also another more than Mathura refinery, which are based in different places. Of some are in Varanasi, some are in Mathura, some are in Allahabad, some are in Kanpur also. So this was all the conflict of refinery versus river organization. So he was very well impressed with me, and I was at that time I realized that yes, I am good in briefing the council. So that was the very first moment that I was. I feel better that I am here for the litigation and I'm doing really good. And I it can be very more convenient in future that if the only thing that you have to take care of is you have to work on yourself, improve every day improve everything that you can, and try to learn and adopt the skills of your senior, your co-associate, your try to interact with the seniors of your law firm, seniors of your chamber, clerk, basically clerk. Uh, there was one person in my office, Rahul. वो clerk है और he is also doing his LLB, also pursuing his LLB in from one of the college of law. I'm not remember his college name. So he is 29 and 28 years of age. He has one child and he is very happily living his family. तो मैं एक बार इंटरेक्ट करा था क्लब से अपने राहुल से, राहुल से बात करते करते मुझे लगा यार राहुल कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे, 7 साल से 8 साल से तुम यहाँ पे हो और कुछ नहीं, बहुत नॉमिनल एक्सपेंसेस पे बहुत नॉमिनल स्टाइपेंड में तुम काम कर रहे हो, और ही इज मास्टर ऑफ एवरीथिंग, ही नो हाउ टू हैंडल द क्लाइंट, ही नो हाउ टू मेंटेन द डाटाबेस, ही नो वेयर इज द फाइल, उसको सब कुछ पता है, इज एक्चुअली गूगल ऑफ आवर ऑफिस. इवन sometime very often I was in trouble in my office when I was initially joined the chamber. जो चैम्बर आप ज्वाइन करते हो तो रहता है ना कि अरे यार आपको एक्सपेक्टेशन फुलफिल करनी है ऑफिस से, देयर इज अ ह्यूज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑफिस, स्पेशली व्हेन द ऑफिस बिलोंग्स टू द वेरी सीनियर senior advocate of the fraternity. So there is a huge expectation and तो मुझे लगा कि अभी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करनी है, और when you have to fulfill your own expectation that when you are going to work in any of the law chambers, which was some of the dream. It means that you have the dream achieve. You have to achieve your dream at one time. तो राहुल से मैं इंटरेक्ट करता था, राहुल मुझे बताता था कि सर इस ऑफिस में ऐसा है कि आपको काम करना है, बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट while working here. You have to make good terms with associates. You have to good work with the biker. हमारे ऑफिस में बाइकर होता था, तो बाइकर क्या करता था कि जो भी ऑफिस के पोस्ट होते थे, कुरियर होते थे या डिपार्टमेंट को कुछ सपोज करो हमें डिपार्टमेंट से कोई इमीडिएट कम्युनिकेशन करनी है और हमारे पास टाइम नहीं है पोस्ट करने का, very often we used to communicate with the department through the speed post and all the government mechanism and courier team. But अभी जब ऐसे हमारा परसों का मैटर है या कल का कोई मैटर आ रहा है, it's very important and we share the material through the hard copy, not through the soft copy. तो हमें बाइकर को इन्वॉल्व करना पड़ा, तो बाइकर के भी बड़े नखरे होते हैं, अगर आपने उनको ठीक से नहीं ऐसे इंपॉर्टेंस दी तो ही विल डिनाई after. Okay, what next happen? Sir will ask you what about the courier, what about the stuff, whether you have shared the brief to your department, whether you have shared the file to the department, because only one person who will be responsible is you. उनको मतलब नहीं है कि बाइकर क्या कर रहा है, उनको मतलब नहीं है क्लर्क क्या कर रहा है, उनको मतलब ही नहीं किसी चीज से, उनको एक चीज से मतलब है कि व्हाट यू आर डूइंग. एंड फिर बाइकर को आपको कन्विंस करना है, आपको क्लर्क को कन्विंस करना है, बाइकर को ये भी हो सकता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि भैया ये 150 लो यार, चाय पानी पी लेना, मेरा काम कर दो.
तो ऐसा होता था। और तो एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर। कभी कभी आप कोर्ट में अपियर हो रहे हो, आपके पास फाइल नहीं है, और आपको अपने पूछना पड़ता है कि अपने ऑफिस के स्टाफ से कि सर मुझे फाइल चाहिए, इमीडिएट चाहिए, बिकॉज आपके साथ सर हैं और आपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफिस में मिस कर दिया है। फिर यू हैव टू आस्क योर क्लर्क, यू हैव टू आस्क योर बाइकर कि यार मुझे वो फाइल लेके आओ किसी भी तरह से। अगर वो सर को बात पता चल गई कि फाइल नहीं है मेरे पास, तो फिर तो मेरा होना है, आज मेरा दिन जाना है। तो this is all the litigation is it's very thrilling at one point of time, and on the another side, in the other point of time, it's all the expectation of the senior, it's all the expectation of the junior. मेरे ऑफिस में more than 20 the 30 juniors are working at a time, because we have a huge law firm, Lex Lacum law firm at Bengali market। बड़ी लॉ फर्म थी हमारी, तो 20 से 30 जूनियर्स काम करते थे वहाँ पे। और उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती थी, मेरे साथ दो से तीन जूनियर एक केस में असिस्ट करते थे। तो उनका ये रहता था कि सर आप इस केस में अपीयर हो रहे हो, तो क्या कल क्या क्या करने वाले हो। तो मैं उनको बताता कि देखो ये एक्सपेक्ट है जिन पे हम बात कर सकते हैं केस में। तो अगर उनके भी कुछ एक्सपेक्ट होते थे इंपॉर्टेंट, जो लगता था कि वी कैन शेयर, तो उसको भी मैं पुट करता था कोर्ट में। और समहाउ एक दो केस में ऐसा हुआ कि उनके जो कमेंट्स होते थे उससे बात बन जाती थी। तो यही है, लिटिगेशन इज ऑल अबाउट कि इतनी अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती थी, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। वेरी रिसेंटली आई केम अक्रॉस विद वन ऑफ माय केस इन ऑक्सीजन मैटर व्हेन आई वाज अपीयर्ड इन डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस विपिन सांघी एंड रेखापल्ली। तो एक बहुत नया फैक्ट अपीयर हुआ मेरे रिसर्च से। वो रिसर्च हमने पहले ही की हुई थी, बट उसको हम जज के सामने उसको पुट आउट नहीं कर पा रहे थे। That was the provision of Drug and Cosmetic Act. Medical oxygen comes under the domain of Drug and Cosmetic Act, and this was completely unknown to the judge. किसी को नहीं पता था कि ये जो प्रोविजन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मेडिकल ऑक्सीजन का, वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आ रहा है। एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था कि जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आएगी। हमने पहले दिन से उसको अपने रिसर्च में लगाया हुआ था, और पिटिशन की कॉपी में भी हमारे था वो। बट प्रॉब्लम ये हुई कि हमने उसको जज के सामने उसको ब्रीफ नहीं किया, जज के सामने हमने उसे कोर्ट नहीं किया। तो हमारा पहले दिन का आर्गुमेंट ऐसा गया कि कोर्ट ने नोटिस इशू किया और किसी तरह हमने पहले दिन को निकाल दिया। दूसरे दिन मैटर आया, इमरान हुसैन वाज अपीयरिंग विद कैबिनेट मिनिस्टर एंड ऑल द सीनियर एडवोकेट एंड टीम। तो भी वो मैटर धीरे धीरे निकल गया हमारे पास। हम वी वाज डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। हम उसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का प्रोविजन ला नहीं रहे थे। कोर्ट ने इमरान हुसैन को क्या कहते हैं डिसमिस, हमारी पिटिशन डिसमिस कर दी और इमरान हुसैन को छोड़ दिया एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन करके कि ये जो इमरान हुसैन है उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी की है, और ही हैज नथिंग टू डू विद एनी ऑफ द इलीगलिटीज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो कोर्ट ने उनको छोड़ दिया और दे इज कंप्लीटली फ्री। फिर हमारे पास हमने दूसरा दो लोगों का केस उठाया। आप प्रवीण कुमार सर्विंग एमएलए एंड वन ऑफ द सर्विंग एमएलए फ्रॉम द जंगपुरा, अभी वो जंगपुरा से एमएलए है। और दूसरा एक श्रीनगर के सर्विंग एमएलए इज मिस प्रीति तोमर एंड हिज हस्बैंड इज मिस्टर जतिन सिंह तोमर। तो हमने उनका केस उठाया, और अभी वो केस अभी पेंडिंग है। गौतम गंभीर के केस के साथ उनका केस लगा हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंगली हमने सेम रिसर्च उठाया, हमने उस ऑक्सीजन एंड उस सारी चीजों को मेंशन किया। बट इस बार हमने क्या किया, मेरे इंटर्न ने बताया कि सर आप सब कुछ तो कर रहे हो, मेडिकल जो हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक का प्रोविजन रखा है वो कोर्ट के सामने अभी तक आया नहीं। लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्या पता कुछ हो पाए। हमने उसको उठाया, और वेरी वेरी ब्रिलियंटली और कोर्ट ने क्या किया, उसी प्रोविजन से आपकी मिस्टर प्रवीण कुमार एमएलए एंड जितेंद्र सिंह तोमर मिस प्रीति तोमर को नोटिस इशू किया। और अभी ड्रग काउंसिल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का काउंसिल जो अपीयर की थी मिस नंदिता राव, इज अ वेरी सीनियर काउंसिल। इवन शी वाज नॉट अवेयर कि मेडिकल ऑक्सीजन कम्स अंडर द डोमेन ऑफ मेडिकल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है कि जो ये रिसर्च किया था मेरे एक इंटर्न ने किया था, स्पर्श नाम है उसका। He is a student of NLU Sonipat.
और मुझे लगा कि यार ये इंटर्न भी कितने बड़े एसेट हो सकते हैं आपके लिए। सी, जब हम किसी भी ऑफिस में इंटर्नशिप करते हैं तो लगता है यार कि हम क्या है, एसेट हैं या बर्डन ऑफिस के लिए। अगर एसेट होते हैं तो बाद में सीनियर क्या कहता है, 5,000 का 10,000 का चेक दे देता है आपको, और लगता है कि यस वी वॉज वर्किंग एज एन एसेट फॉर द चैम्बर। और अगर आप एसेट नहीं होते हो, इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, तो सीनियर कहता है कि वेदांश, इट वाज वेरी नाइस वर्किंग विथ यू, होप टू सी यू अगेन एंड आई विश ऑल द सक्सेस फॉर यू इन फ्यूचर। तो ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है सीनियर की, अगर आप किसी भी चैम्बर में काम करते हो और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो थोड़ा बहुत नॉमिनल आपको रिवॉर्ड मिलता है। सर्टिफिकेट तो मिलना ही है भाई, उसके अलावा क्या आपको मिलना है, ये आपको थोड़े बहुत स्टाइपेंड मिलते हैं। मैं जब अतुल सर के अंडर, अतुल सर वॉज स्टैंडिंग काउंसिल छत्तीसगढ़, मैं उनके अंडर काम कर रहा था, तो दैट वाज माय सेकंड, द वेरी सेकंड इंटर्नशिप, एंड आई वाज इन द थर्ड सेमेस्टर ऑफ माय कॉलेज। तो मैं उनके अंडर काम कर रहा था, मेरी इंटर्नशिप ऐसे कैजुअल गई थी, बहुत अच्छा नहीं हुई थी। उनके भाई थे संदीप झा, इज आल्सो, ही इज करंट प्रेजेंटली स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने मेरी 2-3 दिन क्लास की ठीक से, Vedansh, you don't know the number of judges in Supreme Court. You don't know, you have appeared with sir in many of the cases in Supreme Court. You don't even know remember the cases. You don't even remember the judges that to whom you have to appear. तो मुझे लगा यार कितनी सारी चीजें आपको सीखनी है। तो मुझे लगता था कि आई एम डूइंग गुड, आई हैव प्रिपेयर्ड माय केस डायरी, आई हैव प्रिपेयर्ड केस कमेंट, आई हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, बट बहुत बेसिक चीजें होती हैं। किनके सामने आप कोर्ट में अपीयर हो रहे हो, वो जज क्या है, जज का एटीट्यूड क्या है, जज का बिहेवियर क्या है, जज ने क्या कमेंट किया आउटसाइड ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर में क्या कमेंट किया, जज की क्या ऑब्जर्वेशन थी ऑर्डर के डिसाइड, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। वो there's a very famous quote, you have to read the judge, and if you are able to read the judge and his observation, you have win your 90% of case at that point of time. तो इट्स ऑल अबाउट द रीडिंग ऑफ केस। लिटिगेशन में आपको सब कुछ का ध्यान रखना है, सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है, कोशिश करना है कि सारी चीजों को बैलेंस करके चलो, फ्रॉम द बाइकर, फ्रॉम द क्लर्क, फ्रॉम द सीनियर एडवोकेट, फ्रॉम द इवन इंटर्न्स। आपको नहीं पता कब क्या चीजें हिट कर जाएं। तो लिटिगेशन में बहुत एक्सपेक्टेशन होती है सीनियर्स की, आपको खुद की बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, जज आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप करने वाले हैं, और आपकी क्या तैयारी है उन क्वेश्चंस के लिए। जब अभी राइट नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग यूनियन ऑफ इंडिया, बीइंग स्टैंडिंग काउंसिल, मैं यूनियन ऑफ इंडिया के स्टैंडिंग काउंसिल के बिहाफ से अपीयर होता हूँ दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और मेरे जो सीनियर है वो डबल एजी हैं हरियाणा में, सुप्रीम कोर्ट में, तो कभी कभी मैं सुप्रीम कोर्ट में भी अपीयर होता हूँ। तो जब मैं अपीयर होता हूँ तो मुझे ये लगता है कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उस पिटिशन को लेके जो जज मुझसे पूछ सकता है। और जब आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, बीइंग स्टैंडिंग काउंसिल या बीइंग सीनियर पैनल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है ऐसी जज की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमें जो डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, जो सरकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं, थोड़ा सा जो हमारा परसेप्शन रहता है वो क्या रहता है, सोचो रहता है कैजुअल। बहुत सारे डिपार्टमेंट काम नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में सीनियर लोग होते हैं, वो दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल, बट प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है। कई इश्यूज में ऐसा आता है कि उनके पास इंस्ट्रक्शन होती है बट दे आर नॉट अथोराइज टू पुट दैट इंस्ट्रक्शन टू यू। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं बट वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन होते हैं। और इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन मतलब ऐसा होता है कि हम उसको कोर्ट के सामने हम पुट आउट नहीं कर सकते, कोर्ट के सामने हम रख नहीं सकते, ना ही एज अ रिकॉर्ड। बट हमें इंस्ट्रक्शन रहते हैं, जैसे हमारा कोई मैटर, इंपॉर्टेंट मैटर आ रहा है 2-3 दिन बाद, और हमें इंस्ट्रक्शन है बट क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, नॉट ऑन ईमेल, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। वी आर नॉट श्योर दैट व्हाट वी हैव टू पुट इन द कोर्ट। तो कोर्ट ने हमें पूछा कि व्हाट यू हैव इंस्ट्रक्शन। अगर हम एडवांस नोटिस पे अपीयर हो रहे हैं, तो एडवांस नोटिस पे अपीयर होने का मतलब ये होता है कि इट इट विल बी एम्प्लाइड दैट यू हैव द इंस्ट्रक्शन ऑफ द काउंसिल, इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। तो इवन दैट टाइम वी डोंट हैव द इंस्ट्रक्शन बिकॉज कोविड टाइम में ज्यादातर ऑफिस बंद हैं।
सरकारी ऑफिसेज बंद हैं, अगर कुछ चैम्बर्स का ऑफिसेज काम कर रहे हैं तो 30 to 33% ऑफ एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारा एक मैटर था, अभी एसएससी का मैटर था, इसमें कैंडिडेट्स ने वेरिफिकेशन की प्रोसेस को पूरा किया था, बट फाइनल जो वेरिफिकेशन होने थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें कैंडिडेट ने मिस कर दिया था। 36 वर्ष एसएससी का मैटर है, अभी जस्ट डिस्मिस हुआ मैटर। तो उसमें ये हुआ कि जो कैंडिडेट था, ही वाज सर्विंग एज एन क्लर्क इन एनी ऑफ द कोर्ट चैम्बर, और उसमें जो एक प्रोसीजर होती है, डिपार्टमेंटल प्रोसीजर, और सारे प्रोसीजर उन्होंने फॉलो की, और जो लास्ट प्रोसीजर होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसने वो मिस कर दी। डिपार्टमेंट ने उसकी नोटिफिकेशन वेबसाइट पे की और सारे ही पॉसिबल कम्युनिकेशन किया, बट जो कैंडिडेट था, कैंडिडेट को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टू वेरी फोर्थ स्टेज जो भी नोटिफिकेशन गई, वो थ्रू एसएमएस गई, थ्रू ईमेल गई, बट इट वाज नॉट रिटन एनीवेयर कि जो भी कम्युनिकेशन जाएगी वो आपको ईमेल से जाएगी या एसएमएस से जाएगी। डिपार्टमेंट ने जो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, उसमें उन्होंने ईमेल नोटिफिकेशन नहीं किया, ना ही एसएमएस का नोटिफिकेशन किया, कोई उन्होंने नोटिफिकेशन अडॉप्ट नहीं किया। हमने क्या किया, बीइंग डिपार्टमेंट, हमने वेबसाइट पे गए और हम वहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल दी, जो कि हम करते हैं, दिस इज आवर ड्यू प्रोसीजर। The candidate was in dilemma. I don't know whether he was in dilemma or it was only was in dilemma. और उसने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी या क्या किया, he missed his document verification. He missed his document verification, and he then came to the High Court कि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिस कर दी है, बट आई हैव सक्सेसफुली गॉन थ्रू दिस ऑल द प्रोसीजर ऑफ द डिपार्टमेंट। मैंने रिटन क्वालिफाई किया है, मैंने वाइवा क्वालिफाई किया है, मैंने सब कुछ क्वालिफाई किया है, और दिस इज सर, दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट। तो अभी क्या होगा, कोर्ट ने हमें नोटिस इशू किया, हम पहले दिन अपीयर हुए कोर्ट में, और कोर्ट ने हमें पूछा कि सेक्शन क्या है आपके पास। हमारे पास कोई सेक्शन नहीं था उस दिन, हमारे पास मैटर था। कोर्ट ने हमें 2-3 बातें सुनाई कि अरे आप लोग क्या करते हो, कैसे करते हो काम, यू पीपल आर वेरी इनएफिशिएंट। तो जब आप स्टैंडिंग काउंसिल, जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, तो दे आर नॉट एज not very well versed, very versed with the fact, very well versed with the circumstances, because एक डिपार्टमेंट कई सारी चीजों को डील करता है। जैसे रिटन एग्जामिनेशन को कोई और डिपार्टमेंट डील कर रहा है, इसी एक डिपार्टमेंट में, किसी एक मिनिस्ट्री में रिटन एग्जामिनेशन में कोई और डिपार्टमेंट डील कर रहा है, इंटरव्यू में कोई और डील कर रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई और डील कर रहा है। अगर वो उस प्रोसेस में कोई डिपार्टमेंटल कोटा है, तो डिपार्टमेंटल कोटा को डील करने वाले कोई और लोग हैं। तो कई सारे सेगमेंट होते हैं किसी एक केस में, सिर्फ कोई प्राइवेट केस नहीं होता है जी, दिस इज मी वर्सेस ए वर्सेस बी वर्सेस सी, ये कोई प्राइवेट केसेस नहीं होते। जब गवर्नमेंट केसेस होते हैं तो कई सारे सेगमेंट होते हैं उनके, कई सारे लोग होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कई सारे की प्लेयर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं उन सारी प्रोसेस में, और उन सारे लोगों के इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उनके इनपुट्स अगर नहीं मेंशन हुए, तो इट मे बी पॉसिबल कि आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दिए, और अगर वो चीजें ऑन रिकॉर्ड आ गई तो ऑर्डर आपके एडवर्स में आ सकता है। और अगर ऑर्डर एडवर्स में आया तो उस केस में क्या होता है, अगर गवर्नमेंट केस में अगर एक ऑर्डर भी अगर आपके एडवर्स में आ गया, तो एक प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और देन देयर विल बी थाउजेंड ऑफ लिटिगेशन विल बी अपीयर बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। तो दिस इज नॉट ओनली सिंगल ऑर्डर, वो ना ही वो सिंगल कैंडिडेट है, दे आर मोर देन लाख्स ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर दैट एग्जाम्स, और आपके एक एडवर्स ऑर्डर से थाउजेंड ऑफ फ्रिवलेस लिटिगेशन अपीयर इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो दिस इज ऑल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। एक्सपेक्टेशन डिपार्टमेंट की इतनी ज्यादा रहती है, आपके ऑफिस की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा रहती है, कोशिश हमारी ये रहती है कि हम पूरा अपने एफर्ट के साथ काम करें, बट आप एफर्ट्स के साथ काम करके भी क्या करोगे जब आपके पास कमेंट्स नहीं है, because this is the process, it's all about the process, you have to gone through every of the department, you have to communicate with every of the concerned person. I have quoted concerned person because अगर आप किसी डिपार्टमेंट के क्लर्क से बात करो तो ही इज नॉट अ कंसर्न पर्सन,
कंसर्न पर्सन से बात करनी है, उनका कमेंट्स लेना है, फॉर्मल मोड से कमेंट्स लेना है, ईमेल से कमेंट्स लेना है, हार्ड पेपर में कमेंट्स लेने हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। बट जब आप बहुत फ्रेशर रहते हो, ये चीजों को जानने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। आपको हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए इन चीजों को जानने के लिए। बट ये चीजें, ये टाइम गैप कम हो सकता है अगर इफ यू हैव द असिस्टेंस ऑफ योर ऑफिस, इफ यू हैव द असिस्टेंस ऑफ योर क्लर्क, इफ यू हैव द असिस्टेंस ऑफ जो एसोसिएट्स। तो ये 2 साल का टाइम हो सकता है आप 2 महीने में कवर कर लो, 3 महीने में कवर कर लो, या हो सकता है 6 महीने में कर लो। तो दिस इज ऑल द प्रोसेस। तो लिटिगेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगी, ये वो ये है कि आपको सारी प्रोसेस को फॉलो करना है। आप जब कोर्ट में अपीयर हो रहे हो तो यू आर नॉट द वन पर्सन। ये आपका केस नहीं है, ये आपके ऑफिस का केस है, और ऑफिस का केस नहीं है, ये गवर्नमेंट का केस है, ये डिपार्टमेंट का केस है। तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। आप कुछ भी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, यू हैव समथिंग टू शो कि सर आई एम कोटिंग दिस बिकॉज डिपार्टमेंट हैड सेंट अस इंस्ट्रक्शन ऑन वेरी यस्टरडे नाइट, और उन्होंने ये चीजें कही है। कोर्ट को लगता है कि इफ कोर्ट थिंक्स कि इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर कमेंट्स, तो कोर्ट कहेगा कि पुट योर कमेंट ऑन द काउंटर एफिडेविट फॉर्म, एंड आफ्टर दैट दे विल बी रिजॉइंडेड फ्रॉम द पिटिशन। कोर्ट हमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का इंस्ट्रक्शन देता है, या काउंटर एफिडेविट या शॉर्ट एफिडेविट, व्हाट कोर्ट थिंक्स इन पर्टिकुलर केस। तो हम काउंटर एफिडेविट या शॉर्ट एफिडेविट फाइल करते हैं, और उसके हिसाब से मैटर फर्दर प्रोसेस होता है। जब मैटर होता है तो डिपार्टमेंट के भी कंसर्न लोग आपके उस मैटर में आपको वॉच करते हैं। सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। यू नो, बीइंग अ लॉयर, मेरे मेरे फादर, मेरे फैमिली में कुछ लोग थे, वो कहते थे यूपीएससी करो, जुडिशरी करो। आप लोग ही फैमिली में भी होंगे डेफिनेटली, कहते होंगे जज बन जाओ, आईएएस बन जाओ, कुछ और भी पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट करो, कुछ जैक क्लियर करो। तो जब आप एक लॉयर होते हो और एक अच्छी जगह अपने आप को स्टेब्लिश करके, या अपनी एक अच्छी जगह काम करते हो, जैसे मैं जिस ऑफिस में हूँ, मैं स्टैंडिंग काउंसिल के ऑफिस में हूँ, तो मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो बहुत बड़ी मिलती है। मैं चीफ सेक्रेटरी से डील करता हूँ, मैं डिपार्टमेंट के जो मेन हेड होते हैं उनसे डील करता हूँ। जो सेक्रेटरीज होते हैं वो ज्यादातर आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, एयरफोर्स के मैटर्स को डील करते हैं, बीएसएफ के मैटर को डील करते हैं, सीआरपीएफ सीआईएसएफ के मैटर्स को डील करते हैं। आप जब उनके डीजी से मिलोगे, और डीजी से मिलोगे जब वो अपने पूरे कॉस्ट्यूम में आएंगे, पूरे वो वर्दी में आएंगे, और आपके सामने बैठेंगे, बोलेंगे सर आप कुछ भी करो, हमें इस मैटर से निकालो, तो आपको लगेगा यस यार, आप कितने बड़े सेवियर हो। और जब ऐसा होता था कभी, तो मैं उस दिन अपने मम्मी को या पापा को फोन करता था, पापा आज मैं डीजी से मिला, और डीजी ने कहा कि कुछ भी करो तो सर मुझे इस मैटर से निकालो। तो दैट वाज द मोमेंट। और मैं उसको नोट करता था कि मैं आज इस लोगों से मिला। मैं एक बार एक सीआईएसएफ में एक मैटर में मैं डीजी से मिला था, डीजी से ऑफ सीआईएसएफ, और वो कंटेम्प्ट का मैटर था, जिसमें डिपार्टमेंट वाज गोइंग ऑन कंटेम्प्ट। हाईकोर्ट का ऑर्डर था रिक्रूटमेंट सर्विस रूल को लेके, जिसमें 2 लोगों के 3 लोगों को रिक्रूटमेंट को हाईकोर्ट ने कहा था कि आप उनको रीस्टेट करो। और सीआईएसएफ उन लोगों को रीस्टेट नहीं करा था बिकॉज ऑफ सम ऑफ द सर्विस कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ सम ऑफ सर्विस रूल। तो हमने उस डिपार्टमेंट वाज ऑन कंटेम्प्ट, और उसमें कोर्ट ने नोटिस इशू किया था, और उन्होंने कहा था कि डीजी को कोर्ट में पेश होने के लिए। तो किसी भी मैटर में अगर डीजी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो ये पूरे डिपार्टमेंट के लिए, इवन फॉर द मिनिस्ट्री इटसेल्फ, कि अरे ऐसा क्या हो गया कि डीजी को बुला लिया, तो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो डीजी आपको दिन भर, आपको रात में फोन करेगा, आपको दिन में फोन करेगा। मैं 2 बजे 3 बजे मैं सोने जा रहा था, तो मुझे 2 बजे ऑल ऑफ सडन डीजी का फोन आया कि सर आई एम दिस पर्सन, आई एम सर्विंग एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ, एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज एंटरटेन विद डीजी। तो टाइम क्या था, 2:30 सुबह के हो रहे थे। मैं कहा कि सर क्या हो गया, कि सर कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, मुझे कल अपीयर होना है।
मैं कहा मुझे पता है, मेरे आपके जूनियर से, आपके जो कंसर्न पर्सन है, मेरी उनसे बात हो रही है। वो इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे जो इस मैटर से डील कर रहे थे। मेरी उनसे बात हो रही है और वी आर ऑल ट्राई टू पुट आउटसाइड ऑफ दिस नोटिस। तो सर उन्होंने कहा कि सर कुछ भी करो, मुझे निकालो इसमें से, मैं कोर्ट में अपीयर नहीं होना चाहता। अब क्योंकि मैं डीजी हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं इस मैटर के बारे में, बिकॉज सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, दे हैव कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ अफेयर्स दे हैव टू डील विद, दे आर नॉट द लीगल, दे आर नॉट द लीगल अथॉरिटीज इन देयर डिपार्टमेंट। जो डीजी होता है वो एक अलग प्रोसेस से जाता है, उन्होंने लॉ नहीं पढ़ी है, और वो डिपार्टमेंटल स्टफ में बिजी रहते हैं, डिपार्टमेंट के अलग अलग इश्यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जो उनको जिनसे उनको डील करना है। अगर उनको बोला जाए आप हाईकोर्ट में आओ और अपीयर हो और बताओ कि इस मैटर में क्या हुआ था, आपका क्या कमेंट है, तो वो नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे मैटर में नहीं कर पाएंगे। और अगर करेंगे तो उसके लिए आपको स्टैंडिंग काउंसिल इन्वॉल्व होता है, उनको ब्रीफ करता है, उनको समझाता है कि सर आपको ये बोलना है, ये बोलना है। तो बहुत ये फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट होता है, बहुत इरिटेशन वाला होता है, टाइम होता है। बीइंग अ डीजी, आप इतने बड़े पोस्ट पे हो और आपको हाईकोर्ट में ब्रीफ करना है, हाईकोर्ट के जज के क्वेश्चंस को आंसर करने, क्वेरीज को आंसर करने हैं, और वो भी क्वेरीज ऐसी कि बहुत स्टैंडिंग काउंसिल उन क्वेरीज को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो मैं कैसे उसको रिस्पॉन्स करूंगा। तो जब आप इन सारे इश्यूज से निकलते हो, तो बहुत सारी चीजों को आप सीखते हो। तो जब मैं इस मोमेंट से निकल रहा था, तो फाइनली हमने डीजी को कंटेम्प्ट से बाहर किया, और आफ्टर दैट देयर वाज अ बिग सक्सेस पार्टी। वो रखी गई डीजी के अपने घर पे, और उसमें सारे ऑफिसर्स जो सारे केस से इन्वॉल्व थे, वो सभी लोग उसमें थे। और वहाँ पे बहुत अच्छी पार्टी हुई थी, और मेरे ऑफिस के सारे सीनियर्स भी गए थे, मैं इवन अपने ऑफिस के इंटर्न्स को भी लेके गया था वहाँ पे। और उन्होंने when I was interacting with one of my intern, after I have very good terms with my intern because they are my friends, और मैं उन interns में अपने आप को देखता हूँ, because when I was interning in any of my chambers, तो मुझे भी कुछ ऐसे अच्छे लोग मिले जो मुझे मेरी बहुत हेल्प करते थे। तो मैं अपने ऐसे इंटर्न से पूछता था कि क्या कैसा रहा, क्या चल रहा है, पार्टी कैसी गई भाई, ऐसे मैं पूछता था। तो उन्होंने कहा कि सर इंटर्नशिप वसूल हो गई। तो जब वो उस पार्टी से होके आए और वो बहुत अच्छी ट्रीट से होके आए, तो मैंने अपने इंटर्न से पूछा कि कैसी गई ट्रीट भाई, कैसी कैसी गई ट्रीट, कैसी गई पार्टी। तो उसने कहा कि सर इंटर्नशिप पूरी वसूल हो गई, पैसा वसूल हो गई। तो दिस इज ऑल द मोमेंट दैट आई हैव एंजॉयड एंड चेरिश्ड इन द फैटर्निटी। और जब आप काम करोगे और भी इट्स अ प्रोसेस, आपको और भी इंपॉर्टेंट केसेस मिलेंगे। हो सकता है डीजी के कुछ पर्सनल अफेयर्स हो, प्राइवेट मैटर्स हो, वो भी आपको डील करना पड़े आउटसाइड ऑफ द रिकॉर्ड। तो व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग एनी पर्सन, बीइंग इवन आप अगर किसी प्राइवेट पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मैं स्टैंडिंग काउंसिल को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो बात दूसरी। तो दिस इज द एक्सपेक्टेशंस क्या है क्लाइंट की। एक मैं प्राइवेट मैटर्स में जब आप अपीयर करते हो, तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप उन सारी बातों को कोर्ट में रखो जो हमारी बात हुई है, जो क्लाइंट को जो कंसर्न है। अगर आप सक्सेसफुली उस चीजों को रख सकते हो, इवन दो व्हाट इज द एंड रिजल्ट वी डोंट नो, आप जीतते हो हारते हो, द रिजल्ट आर नॉट इन आवर हैंड्स बट द एफर्ट्स आर इन आवर हैंड्स। तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर आपने उसको सक्सेसफुली कोर्ट में रख लिया, और even though the results are not in your favor, it's adverse, और क्लाइंट सेटिस्फाई है आपसे, तो इट मीन्स कि आपका लिटिगेशन और आपका जो दिन था वो अच्छा गया। आई रिमेम्बर अ डे, प्राइवेट क्लाइंट का एक केस था जो मैं हार गया था। द ऑर्डर वाज नॉट इन आवर फेवर। आई हैव ट्राइड ऑल माय लेवल बेस्ट, माय टीम वाज वर्किंग डे एंड नाइट टू गेट दैट मैटर ऑन ट्रैक। और हम उस मैटर में हम हार गए थे, और हमें क्लाइंट से कुछ फीस चाहिए थी जो पेंडिंग फीस थी। बट मैं इतना एम्बेरस हो गया था कि आई डोंट हैव गट्स कि यार मैं फीस कैसे मांगू। तो मैंने फीस नहीं मांगी उनसे, मैं आई वाज वेरी साइलेंट ऑन दैट। और एक महीना से ज्यादा हो गया, एक महीने ज्यादा हो गए। अब मैं भूल भी गया था कि मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, क्योंकि एक महीने ज्यादा हो गए और कुछ फीस पेंडिंग थी मेरी उनके थ्रू। और एक महीने से ज्यादा हो गया, मुझे क्लाइंट का फोन आया कि सर आपकी कुछ फीस पेंडिंग है।
शी वॉज रेडी, मैं भूलता नहीं हूँ, मैं शी वॉज रेडी कि सर आपकी कुछ फीस पेंडिंग है और आपने क्लेम नहीं किया, ना ही आपके ऑफिस से किसी ने फोन किया। जनरली हमारे ऑफिस से किसी का फोन जाता है कि सर इतना अमाउंट पेंडिंग है, इस दिन सर क्लियर हुए थे, तो ऑफिस से बिल फोन जाता है, कोई एसोसिएट करता है या कोई क्लर्क करता है, और आपको फीस पे करनी है, आपको इतने दिन में फीस कर देनी चाहिए। तो क्लाइंट वाज वंडरिंग कि कोई कॉल नहीं गई आपको आपके ऑफिस से, ना कोई ईमेल गई, ना ही कोई इनवॉइस आई। हम जब, और अगर क्लाइंट इन सारी चीजों की बात भी नहीं करता था तो हम पोस्ट करते थे क्लाइंट को बिल, सर क्या हो गया आपने इनवॉइस नहीं भेजी। तो मैंने कहा कि नहीं सर, आई वॉज वेरी एम्बेरस, और मुझे लगा कि हमने इतने एफर्ट करने के बाद भी हमने केस में हमारा आउटपुट ठीक नहीं रहा, तो दिस इज ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी फीस फ्रॉम यू, रिमेनिंग फीस। तो क्लाइंट ने कहा नहीं नहीं सर, आपने आपको जितना एफर्ट करना था आपने किया, और आपसे अच्छा कोई काउंसिल नहीं हो सकता, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्रेजेंट मी इन द अपीलेंट अथॉरिटी आल्सो। एंड दैट वाज द मोमेंट फॉर मी when client is satisfied with you, और वो खुद कह रहा है कि सर आप अपीयर हो हाई कोर्ट में भी, दैट वाज द मैटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो फिर मैं हाई कोर्ट में अपीयर, अभी उसकी ड्राफ्टिंग चल रही है बिकॉज अभी हाई कोर्ट वेकेशन में है, तो अभी वो मैटर हाई कोर्ट में आने वाला है। तो मेरे ऑफिस के जूनियर्स होते हैं, जब उनको ये बात पता चली तो दे वाज वेरी हैप्पी, और दे वाज एक्चुअली वेरी प्राउड ऑन अस कि यार दिस इज ऑल द लिटिगेशन, यार फीस सब कुछ नहीं है, क्लाइंट से आपका इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, हाउ फ्रेंडली यू आर, आप क्लाइंट को कितना समझते हो, कोशिश करो उन सारी चीजों को रिजॉल्व करने की। लोग कहते हैं आपको बिजनेस में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होना है, इट्स प्रोफेशन, वेदांश, डू यू हैव टू डील विद प्रोफेशन इन प्रोफेशनल स्टाइल, पर्सनल नहीं होना है, बिजनेस है, किसी चीजों को बहुत सीरियसली लेना नहीं, सीरियसली लेना पड़ेगा आपको। मेरा अपना अलग एक पैटर्न है, मैं पर्सनली इन्वॉल्व होता हूँ, चीजों में डील करता हूँ, बिकॉज मैंने लिटिगेशन इसीलिए ली है, बिकॉज आप पर्सनली इन्वॉल्व हो। मेरा अपना मानना है कि अगर आप किसी भी चीज में पर्सनली इन्वॉल्व हो गए तो उसका एक आउटपुट दूसरा रहेगा। किसी भी क्लाइंट से फीस नहीं लेना, दिस इज माई पर्सनल डिसीजन, वेदर आई शुड टेक द फीस और नॉट, दिस इज माई पर्सनल कॉल। और ये तभी आएगा जब आपने उस केस को पर्सनली डील किया है। मैंने चैम्बर्स में काम किया है, कुछ चैम्बर्स में ऐसा था, they don't have to any they don't have any concern with the client, they don't have any concern with the affairs of the client। जनरली क्या होता था, जूनियर्स उन सारे क्लाइंट से डील करते थे, सीनियर्स सिर्फ अपीयरेंस का पैसा लेते थे। ज्यादातर केसेस में हम ही अपीयर होते थे, बट बिलिंग होती थी वो सीनियर के नाम से होती थी। तो उस उन ऑफिस में क्या होता था, बिजनेस आ रहा है, ऑफिस में बिजनेस आ रहा है, क्लाइंट से पैसा लिया जा रहा है, डेली बेसिस पे उनको रिमाइंडर दिया जा रहा है, बट जो इंटरेक्शन होता था काउंसिल का क्लाइंट से, वो होता नहीं था। और क्लाइंट के जो अफेयर्स होते थे, क्लाइंट के जो कंसर्न होते थे, वो एड्रेस नहीं हो पाते थे कोर्ट में। जूनियर्स उनको एड्रेस कर रहे हैं, अरे नहीं, दिस इज नॉट माई वर्क, आई एम अ जूनियर इन एनी, इफ आई एम वर्किंग एज अ जूनियर इन एनी ऑफिस, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर्स टू रिजॉल्व द अफेयर ऑफ द क्लाइंट। बट सीनियर्स ज्यादातर बिजी होते थे, उनको लगता था कि यार ये छोटा केस है, इसमें बहुत पैसा नहीं मिलना है, या इसमें बहुत फीस नहीं आनी है, तो सीनियर उस केस को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते थे, बोलते थे वेदांश इसको देख लो, जो पता है कर दो, बिकॉज इसमें मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं पाऊंगा, बिकॉज इसमें बहुत फीस आने वाली नहीं। बट आपको जब आपका अपना प्राइवेट केस मिलेगा तो आपको लगेगा कि ये छोटा केस भी बहुत बड़ा है आपके लिए, क्योंकि एक क्लाइंट जो होता है उसकी एक्सपेक्टेशन को अगर आपने फुलफिल कर दी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो तो आप जब किसी भी अपने एसोसिएट से, किसी भी कलीग से, या इवन दो इफ किसी और मैटर में अगर आप अपीयर हो गए तो एक अलग कॉन्फिडेंस से अपीयर हो, तो इमोशनली और पर्सनली इन्वॉल्व हो आप। मैं किसी भी मैटर में, इवन गवर्नमेंट के भी मैटर्स होते हैं, तो मैं बहुत पर्सनली इन्वॉल्व होता हूँ उन मैटर्स में, मुझे हर एक चीज़ों का पता होता है, क्या क्या मिनट्स हैं डिपार्टमेंट के, किसी भी ब्रीफिंग में, किसी भी जब हमारी ब्रीफिंग होती है सेक्रेटरी से, आईएएस से, आईपीएस से, डीजी से,
इंस्पेक्टर से या और भी कोई कंसर्न लोग होते हैं, सारे सीनियर लोगों से जब हमारी बात होती है, तो मुझे उनके सारे मिनट्स पता होने चाहिए और मुझे पता होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उनसे बहुत हार्श क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। जब मैं किसी सेक्रेटरी से मिल अंडर सेक्रेटरी से मैटर में ब्रीफ ले रहा था ब्रीफिंग ले रहा था, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे और जो बहुत दैट क्वेश्चन वाज वेरी रिडिकुलस, बट मुझे पता है कि वो क्वेश्चन मुझसे कोर्ट पूछने वाला है। जब सेक्रेटरीज आईएएस आईपीएस अपीयर हो आपके साथ आपको ब्रीफ करते हैं, तो उनके साथ उनकी टीम भी होती है, जूनियर्स होते हैं, उनका ऑफिस स्टाफ होता है, अपनी उनकी पूरी प्रॉपर टीम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। कोई उनके साथ कोई हमारे साथ मीटिंग अरेंज करा रहा है, कोई हमको कोई हमें ईमेल कर रहा है, कोई नोट्स, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बॉस आ रहा है अपना अपना आराम से लास्ट मोमेंट पे वो आपको ब्रीफ कर रहा है कि सर दिस इज ऑल द मैटर इज, ये हमें पता है। तो एक मैटर में मैंने उनसे पूछा कि आपने एक्चुअली प्रॉब्लम उस मैटर में ये हुआ था कि दो पर्सन थे, सिमिलर नेचर ऑफ जॉब परफॉर्म कर रहे थे, सिमिलर टाइम पे उनकी रिक्रूटमेंट हुई थी और उनके प्रमोशंस भी हुए, तो वो सिमिलर टाइम पे हुए थे। तो प्रॉब्लम ये हुई कि एक मैटर में क्या हुआ था, डिपार्टमेंट ने एक की सैलरी रिवाइज की थी, इंक्रीमेंट की थी, और दूसरे की सैलरी इंक्रीमेंट नहीं की थी, वॉट एवर द रीजन इज। तो मैंने डिपार्टमेंट से पूछा कि सर ऐसा क्या हो गया, आपने एक को रिवाइज किया, एक को रिवाइज नहीं किया, कुछ ऐसा पर्सनल इशू था क्या आपका उससे? तो मैंने उनसे पूछा, तो कहा नहीं सर, वो डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में नहीं था। उन्होंने जब ये चीजें बोली, मुझे याद है कि सर उनका करना, उनको इंक्रीमेंट देना ये डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में नहीं था। तो मैंने बोला सर, who gives the authority to decide that this is in the interest of department or not? You are no one to decide the interest of a department. You are, because you are not the department at all. आप सेक्रेटरी से बात कर रहे हो और आप सेक्रेटरी से इस टोन में बात कर रहे हो, तो क्या इंप्रेशन जाएगा? तो मैंने जब मुझसे बोला कि सर यू आर नॉट द वेरी फर्स्ट थिंग, you are not the department. And the number two is, if you have any personal issues, you have to keep it aside, because कोर्ट में जब ये चीजें आती हैं तो इश्यूज बड़े हो जाते हैं। कोर्ट तो हमसे बस एक चीज पूछेगा कि सर ऐसा क्या है जो मैं चीज आपसे पूछ रहा हूँ सर। फिर मैंने आई देन रियलाइज कि उनके साथ में उनके एसोसिएट्स भी हैं, और शायद ये दिस मे बी द पॉइंट ऑफ एम्बेरसमेंट फॉर हिम कि मुझे नहीं आना चाहिए था ब्रीफ करने मुझे। बट आई स्ट्रिक्टली आपसे डिपार्टमेंट की मुझे सेक्रेटरी से ही बात करनी है, मुझे किसी और से बात नहीं करनी। तो मुझे रियलाइज हुआ, मुझे लगा कि इन्वेस्टमेंट का टाइम है। मैंने कहा कि सर आई फील वेरी सॉरी, मैंने आपसे इस तरह से बात की, बट कल को कोर्ट मुझसे एक क्वेश्चन पूछने वाला। तो मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि सर एक्चुअली क्या है, जो ये पर्सन है ये डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में लिटिगेशन करता है, आरटीआई लगाता है, परेशान करके रखा हुआ है हमें, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको इंक्रीमेंट ना मिले, और इसके लिए हम इसको वॉलंटरी रिटायरमेंट भी देने को तैयार हैं। तो मैंने कहा भाई साहब, कुछ प्रॉपर सोल्यूशन निकालो, कुछ और एक अच्छा रास्ता निकालो। ये अगर मैं कोर्ट में बोलूंगा तो कोर्ट तो मेरा लाइसेंस तो लेगा ही, तुम्हारा भी लेगा। तो उसके बाद हमने एक बेटर वे निकाला, एक जो सरकारी चैनल होता है, हमने रिक्रूटमेंट रूल से हमने कुछ प्रोविजन निकाले अपने आप को शील्ड करने के लिए, कि जो हमने डिसीजन लिया वो इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट का। सेंट्रल सर्विसेज रूल्स होते हैं, सीसीएस रूल्स होते हैं, उसको हमने पढ़ा, उस पर रिसर्च की, हमने उसमें से एक दो प्रोविजन निकाले। देखो लॉयर का काम यही होता है, क्लाइंट को बचाना है भाई, कैसे बचाना है वी डोंट नो। अब क्लाइंट कहेगा कि सर इंटरेस्ट में डिपार्टमेंट का नहीं है, कोर्ट थोड़ी ना सुनने वाला है। कोर्ट को आपको रिस्पॉन्ड करना है, और कोर्ट को अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो रिमेंबर एंड मार्क माई वर्ड, कोर्ट में ऐसे लोग होते हैं, जजेस ऐसे होते हैं। मैं हाई कोर्ट में अपीयर होता हूँ, जस्टिस प्रतीक जलान, जस्टिस विपिन सांघी, जस्टिस मनमोहन, जस्टिस इन लॉ, ये हाई कोर्ट में ये लोग ऐसे नाम है कोर्ट में। अगर आप इनके सामने अपीयर हो रहे हो और अगर आपके पास कमेंट्स नहीं है, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो मैं कहूंगा आप अपीयर मत हो। क्योंकि अगर आप अपीयर हो रहे हो, इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ दिया और आपके पास इसका आंसर नहीं है, तो वो तो जान लो एक बहुत बुरा सपना होगा आपके लिए, और आप उसको भूल नहीं पाओगे। तो ऐसा होता है।
वो बिल्कुल जजेस आर सो प्रिपेयर्ड कि उनको कोई एक एडवोकेट चाहिए दिन में जिनका उनको शिकार करना है। और ये कुछ लोग, ये नाम ऐसे है ना, जस्टिस प्रतीक जलान, जस्टिस मनमोहन सिंह, जस्टिस मनमोहन, जस्टिस इनलॉ, कुछ डिवीजन बेंच है जैसे विपिन सांघी और रेखा पल्ली की। अभी चीफ चीफ की कोर्ट है जैसे विपिन सांघी और जसमीत सिंह की कोर्ट, डिवीजन बेंच 4 है जो अभी हाईकोर्ट में बैठ रही है। अगर आपने इनकी कोर्ट में विदाउट प्रिपरेशन अगर आप अपीयर हो रहे हो, तो मैं खुद से कहता हूँ कि वेदांश में अपीयर नहीं होऊंगा। मैं कहूंगा अभी जूनियर से कि बोल दो सीनियर से अलेक्स आर इन अनदर कोर्ट, ही इज बिजी इन अनदर कोर्ट, एंड उनको डेट दे दो भाई। तो ये रहता है। क्योंकि बहुत एम्बेरसमेंट होती है, जज आपको आपके ऐसी की तैसी करने वाला है, और आपके सामने जब इतने सारे लोग रहते हैं मैटर्स में, आपके सीनियर्स रहते हैं, आपके एसोसिएट्स रहते हैं, हो सकता है आपको इस मैटर में एसजी आपके साथ अपीयर हो रहा है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ अपीयर, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो बहुत इन्वेस्टमेंट का इशू होता है। दूसरे दिन आप उससे बात नहीं कर पाओगे। मैं तो मेरे एक मैटर में ऐसा हुआ था, आई वॉज अपीयरिंग विद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और जस्टिस प्रतीक जलान ने मुझे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए, मेरे पास उसका आंसर नहीं था बिकॉज डिपार्टमेंट ने मुझे उसका इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। और मैं बिल्कुल ब्लैंक बच्चों की तरह मैं बिहेव कर रहा था उस टाइम। मैं कहा कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, और आई वॉज इन शॉक कि अभी क्या होने वाला है मेरे साथ। बट लेट एट दैट टाइम लड़ने डीएसजी इंटरवीन, और एएसजी साहब ने उस चीजों को संभाला। यूनियन को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो उस मैटर्स में हो सकता है मैं अपीयर हो रहा हूँ, मेरे साथ एएसजी भी अपीयर हो रहे हैं, एसजी भी अपीयर हो रहे हैं, एजी भी अपीयर हो रहा है। तो अगर आपने कुछ भी गलत बोला और उसमें एसजी भी आपके साथ है, एसजी भी आपके साथ है, तो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा वो। तो उस मैटर में एसजी साहब ने इंटरव्यू किया और किसी तरह से मैटर को निकाला। हमारी शाम को मीटिंग हुई एसजी के साथ, और मैं बिल्कुल शांत था क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे अभी होने वाला है। बट एसजी ने मुझसे पूछा, मिस्टर आनंद आर यू हियर इन दिस मीटिंग? तो मैंने बोला यस सर, आई एम हियर इन द मीटिंग, आई एम लिसनिंग यू केयरफुली। तो मैंने बोला सर, आई एम सिंसियर अपॉलजीज फॉर माय कंडक्ट व्हिच हैज हैपेंड टुडे ऑन माय बिहाफ। नो नो, इट्स एक्चुअली हैपेंड। तो व्हाट द बेस्ट थिंग हैपेंड इन दैट मैटर कि एजी वाज वेरी वेल वर्स्ड विद दैट मैटर, और उन्होंने उस मैटर को पहले भी डील किया हुआ था, और वो मैटर हमें पहली बार मार्क हुआ था। वो 2,500 पेज की पिटीशन थी, वो रात में 12:30 बजे हमें मार्क हुई, और दूसरे दिन वो मैटर लिस्ट भी हो गया, हियरिंग पे भी आ गया, और जस्टिस जलानी कोर्ट में लग भी गया, वो भी एजी साहब के साथ लग गया। अब 2,500 की पिटीशन में कैसे रातों रात पढ़ूंगा भाई? तो वो भी 2,500 की पिटीशन तब पढ़ूं जब मेरे पास ऑलरेडी 4 से 5 मैटर इंपॉर्टेंट मैटर है दूसरे दिन करने के लिए, जिसमें 2 से 3 मैटर में मुझे आर्ग्यू करना है, और उसमें एक नया फ्रेश मैटर आ गया 2,500 पेजेस का, जो जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और वो टाइम भी ऐसा नहीं कि जब मैं डिपार्टमेंट से कहूँ मुझे ब्रीफ करो, कुछ नहीं आपके पास, यू हैव नो वे। क्या करोगे आप? ना आप पिटीशन पढ़ सकते हो, नंबर 1, आपके पास डिपार्टमेंट से बात करने का टाइम नहीं, नंबर 2, नंबर 3 इज आपका कोई एसोसिएट भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता उस टाइम पे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 12:30 अराउंड। अगर मैं किसी को पिटीशन भेजूंगा अभी पढ़ने के लिए और बोलूंगा मुझे ब्रीफ कर दो भाई, तो वो नहीं कर पाएगा। नंबर 4 इज कि वो मैटर प्रतीक जलान की कोर्ट में आ रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव नो वे। और उसके साथ आपके कुछ और अलग इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिसमें आपको अपीयर होना है अलग अलग कोर्ट्स में, क्योंकि हमारे एक मैटर्स नहीं होते, इस दिन इतने भी पॉसिबल है कि आपके 5 मैटर हैं, 6 मैटर्स हैं, 7 मैटर्स हैं, हो सकता है किसी दिन एक भी मैटर्स ना हो। और यूनियन के मैटर्स जो होते हैं वो सारे इक्वली सब्सटेंशियल होते हैं। किसी में आर्गुमेंट होनी है, किसी पे पार्ट हेड मैटर्स चल रहे हैं, पैटर्न फंड चलती है, किसी पे काउंटर एफिडेविट पे कमेंट्स दिए जाते हैं, तो ये सारे इश्यूज होते हैं। तो तो एसजी साहब ने उस दिन की मीटिंग में कहा कि डोंट वेरी वेदांश, ये होता है, मुझे पता है उस मैटर में मैं पहले भी डील किया हुआ हूँ, और डिपार्टमेंट का उसमें कंसर्न है, डिपार्टमेंट इज नॉट वेरी प्रोएक्टिवली डीलिंग विद दैट मैटर, और मैंने सेक्रेटरी से कहा है कि आप अगर मुझे ब्रीफ नहीं करोगे
तो कोई भी एडवर्स ऑर्डर आएगा तो हम रिस्पॉन्सिबल ले लेंगे. दिस इज वन थिंग. आई एम एक्सीडिंग द टाइम, आई एम कंक्लूडिंग राइट नाउ. कुछ मैटर्स में ऐसा होता है कि आप डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करते हो, मेल टू मेल, मेल टू मेल, मेल टू मेल, मेल टू मेल करके जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, उनसे रिस्पॉन्स नहीं आता. आपने 50 ईमेल कर दिया, 60 ईमेल कर दिया, उनके पास उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पता है. तो उसमें हम क्या करते हैं, जेंटल रिमाइंडर टू, जेंटल रिमाइंडर टू, जेंटल रिमाइंडर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भेजते रहो. जितना भेज सकते हो भेजते रहो. बिकॉज कोर्ट हमसे पूछेगा तो हम बोल देंगे देखो भैया हमने 50 रिमाइंडर भेजा है डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट के पास टाइम नहीं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं. तो उसमें हम जेंटल रिमाइंडर और जेंटल रिमाइंडर भेजते रहते हैं, रिमाइंडर भेजते रहते हैं. कुछ मैटर्स में ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट बिल्कुल पागल हो जाता है कि हो क्या रहा है, कितने रिमाइंडर क्यों भेज रहे हो हमारे पास. बट अल्टीमेटली ऐसा क्यों करते हैं हम, बिकॉज वी आर द काउंसिल, we have to appear before the court, and we are answerable for the court. It's not the department, it's not the secretaries, it's not the inspectors, it's not the DG. वो answerable नहीं है. We are answerable party, we are the answerable officers of the court. और इसलिए हमें अपना सारा काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना पड़ता है. तो दिस इज ऑल द लिटिगेशन तो ऐसी है. और एक्सपीरियंस शेयर करने का तो ऐसा है कि दिन रात अगर शेयर करें तो कोई टाइम कम पड़ जाए. तो आई हैव टू कंक्लूड इन दिस. आई एम कंक्लूडिंग राइट नाउ. interns are the assets of the office. Clerk are the assets of the office. Even bikers. आपको सभी को लेके चलना है. हाईकोर्ट का जो चाय वाला होता है ना, कोशिश करो कि उससे भी दोस्ती हो तुम्हारी. अगर नहीं दोस्ती है तो दोस्ती करो. चाय पियो उसके पास, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको. इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, देयर इज नो रिटर्न. तो मैं जब हाईकोर्ट में जाता हूँ तो मैं हाईकोर्ट पे मेरी जो भी चाय के जो टी पॉइंट्स है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है. 50 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट है, वो वेदांश इन्वेस्टमेंट है. मैं ऐसे खुद से कहता हूँ. बिकॉज इफ यू हैव टू ग्रो, इफ यू हैव टू अचीव बिग थिंग्स, तो आपको इन चीजों से हटके सोचना पड़ेगा. डिसाइड दिस लीग से अगर लीग में होके चलोगे तो यू विल बी द पार्ट ऑफ क्राउड. एक अपनी लीग खुद की बनानी है तो इन सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा. कोर्ट का जो स्टाफ होता है, कोर्ट के जो कोर्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनसे भी आपको एक अच्छा टर्म सुनाना पड़ेगा. सीएम जो कोर्ट मास्टर्स होते हैं, आपको आपके आपके टर्म्स उनके साथ कैसे हैं. जैसे क्या होता है, कभी कभी किसी मैटर्स में हम अपीयरेंस हमारी मिस हो जाती है. किसी मैटर में अगर आपके 4 मैटर है, 5 मैटर है, आप किसी कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे. क्योंकि सीनियर तो पूछने वाला है आपसे कि आप कोर्ट में अपीयर हुए कि नहीं अपीयर हुए, और आपको बताना है कि कोर्ट में क्या हुआ. तो आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, आपको सीएम को फोन करना है, कोर्ट मास्टर को फोन करना है, और आपको पूछना है कि सर आइटम नंबर 22 में कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या डेट दी, कोर्ट ने क्या ऑर्डर डिक्टेट किया. सीएम आपको तभी इंटरटेन करेगा व्हेन यू हैव गुड टर्म्स विद सीएम. और अगर वो इंटरटेन कर गया तब तो आपका जान लो दिन निकल गया. और अगर उसने इंटरटेन नहीं किया आपको, फिर तो सीनियर आपकी ठीक से लेने वाला है क्लास. तो ऐसे होता है. आपको टर्म्स जो आपके जो टर्म्स हैं, आपको चीफ में आपके कोर्ट मास्टर्स, कोर्ट ऑफिसर्स, मैं कहा ना वो टी पॉइंट्स पे जो चाय वाला बंदा रहता है, आपको एक्सेस नहीं लगा बीइंग एडवोकेट कोर्ट के अंदर जाने का, वो चाय वाले को एक्सेस है. मार्क माय वर्ड. कोविड टाइम में एडवोकेट्स की एंट्री बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी. उन्हीं को एंट्री मिलनी थी जिनके केसेस थे. बट अगर आपके केसेस नहीं हो और अगर आपको कोर्ट में काम हो, फिर कैसे काम करोगे आप. नंबर 1, जिनका जिनका कोर्ट में केस हो उस दिन आप या तो उनको अप्रोच करो. एडवोकेट्स आपको ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन स्टफ टू डील.
अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, अगर अपियर हो रहा है तो वो आपकी हेल्प करेगा। बट इन दैट केस आपका काम है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपकी कोई फाइलिंग करवानी है, आपको किसी मैटर में सॉफ्ट कॉपी चाहिए, आपको लिटिगेशन सेक्शन में बात करनी है, आपका काम कौन करने वाला है? ये चाय वाले भैया होते हैं ना, बहुत काम के होते हैं। और जो चाय वाले भैया के साथ जो छोटू होता है वो और काम का होता है, उनको सब कुछ पता होता है भाई। और और उनसे बात करो, उनके अच्छे टर्म्स बनाओ, कोर्ट में क्या हो रहा है किसी टाइम पे, उसको उनको एक्सेस होती है, क्योंकि वो चीज जो कोर्ट मास्टर्स होते हैं उनको चाय पिलाते हैं, और कोर्ट मास्टर इज एवरीथिंग। और हम्म, हाँ, युवराज क्वेश्चन अभी लेंगे, मुझे लगता है क्वेश्चन को पिकअप करेंगे। तो ये लिटिगेशन के इतनी सारी चीजें हैं कि डील करेंगे तो डील करते ही रहेंगे। इट्स ऑल अबाउट द टर्म्स, ट्राई टू मेक योर ओन कॉन्टैक्ट्स, ट्राई टू एक्सप्लोर द एसेट्स ऑफ द ऑफिस। इन्वेस्टमेंट करिए आप लोग, टाइम का इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़ा बहुत पैसा है तो मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट कीजिए। द वेरी थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। मुझे पता है कि जो मेरे ऑफिस में जो क्लर्क है उसके फैमिली में भी क्या हो रहा है। मैं कोविड में बहुत सारी इश्यूज आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स आ रहे थे। मैंने अपने ऑफिस के स्टाफ को फोन किया, उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है। अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को नहीं, उनको तो फोन किया ही। जिन जिन ऑफिस से मैं होके अभी आ रहा हूँ, दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट ऑफिस दैट आई एम वर्किंग। इवन उन ऑफिस में जिन ऑफिस में मैंने इंटर्नशिप की है, उन ऑफिस में भी मैंने उनको फोन किया, मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है। आप घर पे मत फोन करो यार, चलेगा। मम्मी पापा से मत बात करो, चलेगा। दोस्तों से मत बात करो, चलेगा। गर्लफ्रेंड से मत बात करो, चलेगा। बॉयफ्रेंड से मत बात करो, चलेगा। बट इफ यू हैव डेडिकेशन एंड इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ स्पिरिट कि आपको आगे बढ़ना है, तो ये सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं जिनको आपको बहुत केयरफुली और बहुत सिंसियरली डील करना पड़ेगा। आप उनको पूछो, उनको जानो, और उनको इतना अच्छा लगेगा ना कि वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपका कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका कोर्ट का स्टाफ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, उनके पास ऑलरेडी बहुत काम होते हैं। तो जैसे मुझे कभी कभी किसी चीज में फाइलिंग की जरूरत पड़ती है, तो मैं किसी और ऑफिस के स्टाफ से बोलता हूँ, भैया मेरी फाइलिंग कर दो, बहुत अर्जेंट चाहिए मुझे। वो मेरी हेल्प करते हैं। दिस इज ऑल द टर्म्स इज। मैं क्या कर रहा हूँ उनके लिए? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझसे किसी दिन हाईकोर्ट में मिलेंगे, मैं बोलूंगा भैया चाय है मेरी तरफ से आज, और चाय के साथ समोसे खिला दो उनको, बस यही चाहिए भाई। बीइंग अ जूनियर लॉयर, वी आर ऑल द जूनियर लॉयर, हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं। कल को आप लोग भी स्ट्रगल करोगे, और बहुत स्ट्रगल। मार्क माई वर्ड, even you are in litigation, you are in judiciary, even anywhere. Some of my friends are in judiciary also, serving as a judge. बहुत स्ट्रगल है। बट अगर आपकी टर्म्स अच्छी हैं ना लोगों से, तो वो स्ट्रगल आसान हो जाते हैं। देयर इज अ वे। और जो रास्ता निकलता है ना आपकी, जब किसी डिफिकल्टीज में हो, तो ये लोग उसमें ना हनुमान जी का काम करते हैं, जो समुद्र पार कर जाएंगे आपके लिए, बस एक समोसे और चाय के लिए। और आपका इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए उनके साथ। आप उनके व्हाट्सएप पे उनके स्टेटस आ रहे हैं, उनके व्हाट्सएप पे कुछ शेयर करो, उनको लिखो। उनके जो स्टेटस आ रहे हैं उनपे लिखो कि हाँ यार ये भैया आपने बहुत अच्छा लगाया है, दिस इज वेरी गुड पोस्ट दैट यू हैव शेयर्ड। कॉर्पोरेट लॉयर्स जो होते हैं ना, उनके में ये चीजें नहीं होती। Most of the friends that we have joined here are from the NLUs, because this is the initiative of NLUs. Lighting Dreams is the initiative of the NLUs. My some of मेरे good friends are in NLUs, और वो काफी अच्छा कर रहे हैं लिटिगेशन में। तो वो मुझसे पूछते हैं कि कैसे करना है। मैं बोलता हूँ भैया एनएलयू वाले लोग ये चीज। Sir, you are not audible.
सॉरी, आई लॉस्ट माय कनेक्शन। लिटिगेशन में सारे लोग एक जगह पे होते हैं। सो दैट्स ऑल। आई थिंक आई हैव एक्सीडेड माय टाइम। इट वाज लवली टू इंटरेक्ट विद यू गाइस। So if you have any questions, the session is open for the question and answer. Uh, Yeah, Kushagra, kindly take the question. Kushagra. Yes, so the participants kindly post your questions in the chat box. So there's a question from UV Sharma. He asks, Sir, kindly put light on role of peers and friends made in law schools. Yuvraj is my friend, my college. He's also practicing advocate in Gurgaon, and he's a very established law. Working in a very established law firm. और युवराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. Actually, the role of peers is very important. He is working as a, वो मेंटर्स का काम करते हैं आपके लिए. और वो भी उस टाइम पे जब आप लिटिगेशन में बहुत डिप्रेशन रहती है, बहुत कियोस्क होता है, आपके आपके दिमाग में कई सारी चीजें एक साथ चलती रहती हैं. कई सारे इश्यूज रहते हैं, वो सारे इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. उसके साथ आपकी फैमिली इश्यूज भी होते हैं, फैमिली की पॉलिटिक्स भी होती है. अगर आप बाहर रह रहे हो तो कुछ हो सकता है, कुछ और भी स्टफ्स हो. आपकी इवन पर्सनल रिलेशन भी हो सकते हैं. इफ यू आर इन रिलेशनशिप विद एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और लाइकवाइज, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो आप कोर्ट में डील नहीं कर सकते. तो उसके लिए आपको पेयर का जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका सपोर्ट चाहिए, आपके मेंटर्स हैं उनका सपोर्ट चाहिए, कुछ सीनियर्स हैं उनका सपोर्ट चाहिए. दे आर एक्चुअली दे आर द एसेट, दे आर all time available source for you. They have, it may be possible कि they may be busy with all their stuff, but अगर आप उनको कॉल करोगे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, they are available for you. Mark my word, because they care about you. लिटिगेशन में बहुत टफ होती है सिचुएशन. बहुत दिन जो जाता है ना, बहुत हैक्टिक सा जाता है. आप जब घर पे आते हो, मैं कभी कभी घर पे 2 बजे आता हूँ, 3 बजे आता हूँ. हो सकता है किसी किसी दिन में ऑफिस में रह जाऊँ. बहुत हेक्टिक रहता है. खाने का कोई शेड्यूल नहीं है, सोने का कोई शेड्यूल नहीं है, लोगों से बात करने का कोई शेड्यूल नहीं है. घर पे जब मैं आता हूँ तो जब मैं घर पे आता हूँ तो सभी लोग उस वक्त सो चुके रहते हैं. मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे क्लोज रिलेटिव. आप किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, बट आपका फ्रेंड हो सकता है वो जगह हो, और उससे आप कुछ चीजें शेयर कर सकते हो. युवराज इज वन ऑफ माई फ्रेंड, और उसको मैं कभी भी परेशान कर सकता हूँ. तो रोल ऑफ पेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. If any other question. Yes, sir. Sir, Deepika Sharma has asked how a first generation approach litigation after finishing graduation and how to choose a good mentor or senior to learn from in the beginning years. नहीं, लिटिगेशन में आप चूज नहीं कर सकते आपका मेंटर कौन है, सीनियर कौन है. हम भी जब लिटिगेशन में जाते थे, इंटर्नशिप लिटिगेशन के शुरू इनिशियल ईयर्स जो हुआ, आपका बहुत इट्स ऑल अबाउट द लक एंड द फील्ड दैट यू आर वर्किंग. वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं. बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे होते हैं वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं. आप जाते हो वहां पे चाय पी के आते हो, और आपको लगता है साला दिन में क्या किया, इसी लिटिगेशन कर रहे थे क्या. और बहुत बेकार का काम करवाते हैं आपसे. फोटो कॉपी करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं. बोलते हैं चाय बोल दो, ये बोल दो, वो बोल दो. अरे हम एडवोकेट्स हैं. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगता है कि वी आर एडवोकेट्स, हमने एमएलयू से पढ़ाई की है अभी, और हम लिटिगेशन में आए तो हमने सूट्स देख के हमने लिटिगेशन में आए. वो नो सूट्स, सूट्स सीरीज देख के वी ऑल बिकम हार्वी स्पेक्टर एंड, और हमें लगा कि बस ये लिटिगेशन है, और हार्वी स्पेक्टर आएगा और अपनी बड़ी सी गाड़ी लेके और मर्सिडीज में आएगा और लिटिगेशन शुरू करेगा. नहीं, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लिटिगेशन. सीनियर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉलेज के सीनियर्स का देखिए क्या है वो, वेदर you are comfortable, whether you have good bond with your senior of your college, because they are going to play a very major role in shaping your career. उनसे बात करिए, they will be helpful. कॉलेज के प्रोफेसर से बात कीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे. बिसाइड दिस, आपके फैमिली टर्म्स हैं क्या किसी ऑफिस में, उनको भी एक्सप्लोर करिए और उनसे भी बात करके देखिए. उनके भी ऑफिस में कुछ दिन जाइए, काम करके देखिए. और बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, बहुत चैलेंजेस होते हैं.
आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। सेकेंड थिंग इज, कोई चाहता नहीं कि आप आगे बढ़ो। There is a cut and throat competition in the litigation, and not litigation, in every field. आपका फ्रेंड नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। कुछ कुछ केसेस में आपके सीनियर्स भी आपके साथ अनकंफर्टेबल होने लगते हैं कि आप कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। विथ मी इट्स एक्चुअली एप्लीकेबल। मेरे सीनियर्स हैं जो उनकी थोड़े से इनसिक्योरिटी ऐसा कॉम्प्लेक्स रहता है, बट दे आर वेरी गुड मेंटर्स ऑफ मी। वो आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं, डेफिनेटली दे विल हेल्प यू, बट बिसाइड दिस इज ऑल योर एफर्ट। वो होता है ना, शुरू में आपने इंटर्नशिप करनी है, एनएलयूज का और हमारे लॉ कॉलेज का ये रहता है कि इंटर्नशिप करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड का एक्सप्लोर करना है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए एसेट क्या हो सकता है, वो ये है आपकी अपनी पढ़ाई, आपका अपना रिसर्च और आपका अपना एकेडमिक्स। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत काम करने वाली है। मैं अपने कॉलेज में था तो वन ऑफ माई टॉपर, मैं अपने कॉलेज में टॉपर था, and I consider to be a topper in my college. फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए ये चीजें होती हैं कि आपके पास क्या है, एक्सेप्शनल क्या है चीजें, एडिशनल चीजें क्या है। आप किसी भी चैम्बर्स में जाते हो तो आप उनकी एक्सपेक्टेशन को कैसे फुलफिल कर सकते हो विथ योर रिसर्च, यू नो। अच्छे लॉयर्स होते हैं, दे आर वेरी गुड, दिस कैन बी पॉसिबल दैट they are very good in arguments, they are very good in English, they are very good in all this stuff, but this is not necessary, this is not mandatory that they are very good in research. Try to be good in your research, try to be good in your academics, पढ़ते रहो, try to be very updated with all the legal stuff, with all the legal news, with all the legal updates. Try to keep yourself involved in all the legal activities that you can, because ये सारी चीजें आपको एक अलग पर्सनालिटी, आपका एक अलग पर्सनालिटी लाने में आपकी हेल्प करेंगे। दिस विल बी हेल्प। फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए ऑन एवरी स्टेप देयर इज अ स्ट्रगल। आई नो द स्ट्रगल ऑफ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, एंड आई एक्चुअली आई एम, मैं अभी उस प्रोसेस में ही हूँ। तो देयर इज अ स्ट्रगल। 10 साल बहुत स्ट्रगल है फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए, 10 साल तो है ही है। और ये इन सारे स्ट्रगल्स को आपको बहुत पेशेंस के साथ निकालना पड़ेगा। बहुत अपडेटेड रहिए अपने एसोसिएट्स जो है, बट इवन इन सारे प्रोसेस में जाने के बाद अपने आप को कभी अंडरमाइन मत करिए। मेरे फ्रेंड्स हैं, दे हैव वेरी ओन गुड सेटअप ऑफ लॉ फर्म्स, बहुत से लोगों के बहुत अच्छी बैकग्राउंड है, दे हैव फैमिली ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, दे हैव द फैमिली ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, बट मार्क माय वर्ड, even if you are from first generation lawyer, never and ever undermine yourself. कभी अपने आप को undermine मत करना। And if you are facing any difficulties and at any point of time, reach at me. I will be able to help you in all possible way. मैं जो भी हो सकता है मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। बट ओवरऑल कभी अपने आप को डिस्करेज मत करना, अंडरमाइन मत करना, और अपने सीनियर्स को अप्रोच करना, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के बड़े अपने एसेट्स भी होते हैं, बिकॉज जो लेगेसी आप अपनी आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ोगे ना, वो बहुत अलग रहेगी। अपने बच्चों को आप बोलोगे कि ये मैंने बनाया तुम्हारे लिए। तो दिस इज ऑल। और ये एक बहुत हार्डवर्क के साथ आएगा, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत पेशेंस चाहिए उसके लिए, और अल्टीमेटली सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है, और कभी भी किसी भी एक स्टेप पे रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना। आगे चलते जाओ, कुछ ना कुछ आगे रास्ता निकलेगा। और ऑलवेज जहाँ पे इतने सारे बुरे लोग हैं ना, वहां पे आपको कोई ना कोई एक अच्छा इंसान मिलेगा। फाइंड दैट गुड गाय। मेरे ऑफिस में चैम्बर्स में, ज्यादातर चैम्बर्स में जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो क्लर्क होते हैं या वो बाइकर्स होते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। और यू नो, इनिशियल लिटिगेशन फर्स्ट जनरेशन लॉयर की जो सीखनी होती है ना, वो आपको क्लर्क से ही सीखनी है। मार्क माय वर्ड, आपको सीनियर आपको टाइम देने वाला है।
मैं जो लिटिगेशन जो अभी हमने सीखी है वो अपनी क्लब से ही सीखी है। मैं राहुल भैया जो मेरे ऑफिस में जो थे, मैं उनको कभी भूल नहीं पाऊंगा। ही इज लीजेंड फॉर मी। कल को वो लॉयर बनने वाले हैं, मैं उनसे अभी भी बात करता हूँ, और कभी कभी ऐसी कोई डिफिकल्टीज होती है ना तो मैं उनसे बात करता हूँ कि राहुल भैया इसका कैसे रास्ता निकालूं मैं। एंड ही हैज द वे। उनको पता होता है कि कुछ ना कुछ वो रास्ता निकाल देंगे वो। दे आर वेरी डिलीजेंट। उनको लीगल इंट्रिकेसीज के बारे में पता नहीं रहता है, बट उनको पता है कि देयर इज अनदर वे विच आर हेल्पफुल फॉर यू। और यही चीजें हैं, ये प्रोसेस है, ये चीजें प्रोसेस है। जैसे जैसे आप लिटिगेशन में आप आगे जाते जाओगे वो चीजें आपको मिलती जाएंगी। तो Yes, sir. So there's a question from Priyanshi Rai. She's asking, even after so much chaos and uncertainty in litigation field, what is your one crisp mantra to succeed in this field? आई हैव ऑलरेडी शेयर यार, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन, और अपने आप को कभी अंडरमाइन मत करना। मार्क माय वर्ड। एक एटीट्यूड होना चाहिए। यू आर अ लॉयर एंड यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन एनी ऑफ द इवन इफ यू आर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप लॉयर हो, और इस चीज का ध्यान रखना। आप किसी सोसाइटी में किसी लोगों से बात कर रहे हो, किसी पुलिस वाले से बात कर रहे हो, या किसी और लोगों से बात कर रहे हो, जैसे हम किसी पुलिस वाले से बात करते हैं, तो यू आर अ लॉयर, ये उसको पता होना चाहिए। यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। ऐसे नहीं आपको बता के आपको नहीं बताना है कि यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। यू हैव टू प्रूव समथिंग, यू हैव टू शो समथिंग दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम दैट गाय। किसी आप शादी में हो, सपोज करो मैं किसी वेडिंग एनिवर्सरी में रहता हूँ, वेडिंग सेरेमनी में रहता हूँ, तो आप आसपास के लोगों से बात करो। डीजे होते हैं आजकल, जैसे मैं यूपी में जाता हूँ शादी में, तो कोई रूटीन ही नहीं होता, कभी भी डीजे बजाया जा रहे हैं, कभी भी गाना बजाया जा रहा है, कोई शेड्यूल नहीं होता उनका। तो एक ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी है मुझे बात करने की लोगों से। वो बहुत वीआईपी हाई प्रोफाइल शादी थी, और मैंने बोला कि भैया ये जो आप लोग जो डीजे जो बजा रहे हो, जो जो प्रोसीजरल डेसिबल मेंटेन करनी होती है, आप लोग उसको फॉलो करते हो क्या? 10 बजे के बाद जो भी जो साउंड्स होते हैं, जो साउंड इक्विपमेंट होते हैं, उनकी डेसिबल अपने आप कम कर दी जाती है। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। और देखो आपकी अपनी डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट जोन में, आपकी डिस्ट्रिक्ट जिसमें आप हो, वहाँ पे कोई ऐसी गाइडलाइन है क्या? जब मैं बनारस में था कुछ समय के लिए, तो वहाँ पे गाइडलाइन निकली थी, गाइडलाइंस निकली थी एट द टाइम, जब वहाँ पे जो शादी वाले जो टाइम होते हैं, कि इस 10 बजे के बाद आपके सेरेमोनियल फंक्शंस में जो डीजे होगी उसकी डीजे बंद कर दिए जाएंगे। तो मैं बनारस में था एक समय, एक इंसिडेंस में, और वहाँ पे ऐसे म्यूजिक परफॉर्मेंस चल रही थी, और 10 बजे के बाद भी वो सारे परफॉर्मेंस चल रहे थे। और आई वॉज अवेयर विद द फैक्ट कि बनारस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ दिन पहले ये नोटिफिकेशन निकाला है कि जो भी म्यूजिक सिस्टम है वो 10 बजे के बाद बंद होने हैं। तो आई वॉज वंडरिंग हियर एंड देयर। मैं कहा कि कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, बिकॉज हम लॉयर हैं, कुछ अलग करना चाहिए अभी हमें। तो बीइंग ए जूनियर लॉयर आप क्या कर सकते हो? आरटीआई, मैंने आरटीआई फाइल की, मैंने मोर देन 350 आरटीआई हैव बीन फाइल्ड। आई आई अभी भी मैं रेगुलरली आरटीआई फाइल करता रहता हूँ। अलग अलग इश्यूज पे आरटीआई फाइल करता हूँ। ये चीजें आपको अलग बनाती हैं। there is chaos, there is uncertainty, there is a very uh, there is a very setbacks and everything, drawbacks and everything. बट ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। आप कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो? आप कैसे, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं अभी जहाँ रहता हूँ, कुछ वहाँ पे लोकल मार्केट्स हैं। लोकल मार्केट्स में उनके अपने फूड आइटम्स होते हैं, उनकी अपनी पैकेटिंग होती है, हल्दीराम है तो हल्दीराम से रिलेटेड कुछ अपने उनके नमकीन होंगे, उन पे ना ही एफएसएसएआई के अप्रूवल होगा, ना ही वो जो फूड मार्का होगा वो होगा। तो आई वॉज वंडरिंग एट द वेरी वन ऑफ माई प्रीमियर शॉप इन माई लोकेलिटी। वहां पे एक वो नमकीन दे रहे थे ऐसे, और वो हमारे सोसाइटी का बड़ा फेमस नमकीन है। मैं गया और उन्होंने मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसे नमकीन एंड स्नैक्स दीजिए, तो उन्होंने मुझे वो दिया। और
फॉर्चुनेटली कहो या उनका अनफॉर्चुनेट कहो, मैंने जब उनकी पैकेटिंग देखी तो देयर वाज नो साइन ऑफ एसएसएआई, देयर वाज नो अप्रूवल ऑफ एनी ऑफ द फूड अथॉरिटीज जो अप्रूव करती हैं। एक उस पे साइन होता है वेज नॉन वेज का, कुछ नहीं था, नथिंग। देयर इज डिस्क्रिप्शन मेंशन कि इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट है, किन किन चीजों से बना है, कुछ भी नहीं था। नॉर्मल पैकेटिंग थी, नॉर्मल पैकेटिंग में उसका कुछ कंपनी का नाम था, पीछे एक ब्रेक का प्राइस लिखा हुआ था, और लोग उसको बढ़िया से उसको कंज्यूम कर रहे हैं। मैंने जब उस चीज को देखा, मैं फिर उसके जो जनरल स्टोर का जो क्या मैनेजिंग डायरेक्टर कह लेता हूँ उससे मैंने बात की। उसके गले में वो सोने की चेन लगी हुई थी, वो द रॉबिन हुड ऑफ द सोसाइटी। तो मैंने उनसे बात की। मैं कहा भैया ये जो आप सामान दे रहे हो, सैंपल भरवा दूंगा मैं आपकी दुकान का, ये बिल्कुल आप ये जो चीजें दे रहे हो ये अप्रूव नहीं है। फूड इंस्पेक्टर आके सीज करेगा आपकी दुकान को, और चार्ज लगाएगा, कंपनसेशन क्रिमिनल चार्ज लगाएगा, वो अलग। तो दिस इज द वन इंसिडेंट आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू। डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है आप सोसाइटी में, आप जहां पे रह रहे हो वहां पे आप कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। इन चीजों का ध्यान दो, जहां 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 पे भी आप जा रहे हो उन चीजों को ऑब्जर्व करो कि क्या क्या लूप होल्स हो सकते हैं, लीगल लूप होल्स क्या क्या हो सकते हैं। अभी क्या होता है, जब जब मैं उस जनरल स्टोर पे जाता हूँ, इवन दो बहुत भीड़ रहती है क्योंकि वो बहुत बड़ी दुकान है हमारे सोसाइटी, हमारे लोकेलिटी की। अब जब जब मैं उस लोकेलिटीज में जाता हूँ, जो वहां का बंदा रहता है वो बोलता है अरे वकील साहब आप आइए, आपको क्या चाहिए बताइए तो दिस इज वी आर द लॉयर्स, राइट? we we all the lawyers, we should have self respect for our profession। अपने आप को अंडरमाइन नहीं करना है कभी। और डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, कहाँ कहाँ क्रिएट कर सकते हो, इसको भी देखना है। तो दिस इज ऑल आई हैव टू से अभी। इफ एनी अदर क्वेश्चन। Thank you so much, sir, for taking out time to come here and give us your insightful experiences. And it was a great session, and it was great to have you here. And we thank you for being here in such a short time, so short notice. And we also thank the team Lighting Dreams who has worked hard to make this session a success. And we also thank all the participants for being the part of this great session and listening to Vedansh sir here for about his experiences, about his life, and about his insights. And we'll have more such sessions to come in the future, and we hope that you all gained a very insightful experience through this session. Thank you so much, sir, for being with us today. Thank you indeed, my brother. Thank you the entire team.